بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور دیگر گروپس میں شیئر کرتے جائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن مجید کے پڑھنے میں کہیں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور اسے وہ درست کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو اور ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تنوین پر مشتمل ہے. اب تک میں آپ کو تنوین کے دو اسباق پڑھا چکا ہوں، ایک دو زبر کی تنوین اور دوسرے دو زیر کی تنوین. تنوین اور نون ساکن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. دو زبر کی تنوین اوپر لگتی ہے، دو زیر کی تنوین نیچے لگتی ہے. اسی طرح سے آج جو ہم پڑھیں گے وہ دو پیش کی تنوین ہے. دو پیش کی تنوین، ایک پیش سیدھا ہوتا ہے اور دوسرا الٹا، یہی ہے دو پیش کی تنوین. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بہت سارے مقامات پر اس طرح کی علامت آپ کو بعض حروف کے اوپر لگی ہوئی دکھے گی، اسی کا نام دو پیش کی تنوین ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے تو دو زبر کی تنوین برابر ہے ان کے، جیسے ان برابر ان، نون ساکن آ گیا. اسی طرح سے دو زیر کی تنوین برابر ہے ان کے، اور اسی طرح سے دو پیش کی تنوین برابر ہے ان کے، یعنی ان ان ان. جب دو زبر کی تنوین رہے گی تو اس کے آخر میں ان کی آواز آئے گی. دو زیر کی تنوین رہے گی تو اس کے آخر میں ان کی آواز آئے گی. اور اگر کسی بھی حرف کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو وہاں پر آخر میں ان کی آواز آئے گی. تو اس طرح سے ہمیں اس کو پہچاننا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر دو پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے آخر میں ان کی آواز آئے گی. اس کو ہم مزید اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جیسے ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، غن، طن، غن، عن، غن، فن، ان، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، یون. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھا کہ اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے اور لاسٹ میں ان کی آواز آ رہی ہے. ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، غن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن،
उन युन। अब हमने तो जान लिया कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, और ये कि अगर किसी भी हर्फ के ऊपर अगर दो पेश की तनवीन आ जाए तो आखिर में हम जो आवाज निकालेंगे वो उन की आवाज निकालेंगे, जैसा कि यहां पर हमने मिसालों में देखा। अब हम उन मिसालों को देखेंगे जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, ताकि सबक और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे आदुन, अज़ीमुन, हरीसुन अलैकुम, अजरुन कबीरुन, रीहुन आसिफुन, अब आप इन मिसालों को बगौर देखें और दो पेश की तनवीन का जो कायदा मैंने आपको बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए आप इन मिसालों में जहां पर भी दो पेश की तनवीन है उसको इस अंदाज में पढ़िए कि आखिर में उनकी आवाज है। जैसे आदुन, अज़ीमुन, हरीसुन अलैकुम, अजरुन कबीरुन, रीहुन आसिफुन। अब आपने देखा कि मैंने आदुन यहां पर मैंने आइन को खींचा, क्यों? इसलिए कि यहां पर अलिफ हरफे मद है। दुन, मैंने दुन उन की आवाज निकाला, क्यों? इसलिए इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, और दो पेश की तनवीन किसी भी हर्फ के ऊपर अगर लगे तो फिर उसके लास्ट में उन की आवाज आती है। इसी तरह से अज़ीमुन, अज़ीमुन, आइन को हमने जल्दी पढ़े, क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर जबर है, हरकत है, हरकत को खींच कर नहीं पढ़ते। ज़ी, हमने ज़ी को खींचा, क्यों? इसलिए कि यहां पर या मद्दा बन रहा है। या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे अगर जेर आ जाए तो फिर या मद्दा बनता है, उसको खींच कर पढ़ते हैं। तो अज़ीमुन, हमने यहां मुन पढ़ा, मुन, लास्ट में हमने उनकी आवाज निकाली, क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, और दो पेश की तनवीन किसी भी हर्फ के ऊपर अगर आ जाए तो फिर लास्ट में उसके उनकी आवाज आती है। तो कैसे पढ़ेंगे? अज़ीमुन, हरीसुन अलैकुम, हरीसुन, हा को जल्दी पढ़ेंगे, री खींचेंगे, इसलिए कि यहां पर या मद्दा बन रहा है, या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा बन रहा है। तो क्या हो गया? हरीसुन, सुन, स्वाद पर हम उनकी आवाज निकाल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि दो पेश की तनवीन लगी है। तो हरीसुन अलैकुम, अलैकुम, आइन जल्दी पढ़ेंगे, लई जल्दी पढ़ेंगे, यहां पर या लीन बन रहा है, या साकिन से पहले लाम के ऊपर जबर है, इसलिए हम इसको अलैकुम, यहां पर मीम साकिन अपने माकबल को से मिलकर के कुम बन गया, जल्दी पढ़ेंगे। तो हरीसुन अलैकुम, अजरुन कबीरुन, अजरुन, अज जीम साकिन है, अपने माकबल आ से मिलकर अज बना, रुन, यहां पर रा पर मैंने रिन क्यों नहीं पढ़ा, रुन क्यों पढ़ा मैंने, या रन क्यों नहीं पढ़ा, रुन ही क्यों पढ़ा? इसलिए कि इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, और दो पेश की तनवीन जब भी किसी भी हर्फ के ऊपर लगे तो आखिर में उनकी आवाज आएगी। लिहाजा यहां पर अजरुन कबीरुन, का को जल्दी पढ़ेंगे, इसके ऊपर जबर की हरकत है, बीरुन, या साकिन है, और या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, इसलिए यहां पर या मद्दा बन रहा है। तो अजरुन कबीरुन, यहां पर भी आप देखिए कि तनवीन का ख्याल करते हुए यहां पर मैंने लास्ट में जो आवाज निकाला वो उनकी निकाला, लिहाजा जब रा के ऊपर दो पेश की तनवीन लगी तो आवाज आई उन, तो क्या हो गया? कबीरुन। इसी तरह से रीहुन आसिफुन, रीहुन, री खींच कर पढ़ेंगे,
क्योंकि या मद्दा है, या साकिन से पहले रा के नीचे जेर है, तो क्या पढ़ेंगे रीहुन। यहां पर तनवीन होने की वजह से हमने इसको आखिर में उन की आवाज निकाला, लिहाजा जब हा के ऊपर दो पेश की तनवीन आया तो हमने उसको हुन पढ़ा, रीहुन। आसिफुन, आइन को हमने खींचा इसलिए कि अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर यानी आइन के ऊपर जबर है, और अलिफ से पहले वाले किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर आ जाए तो अलिफ बनता बन जाता है, जिसे खींचकर पढ़ा जाता है। तो आसिफुन, सिफुन, सी जल्दी पढ़ेंगे, स्वाद के नीचे जेर है, फुन इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, इसलिए हम इसकी आवाज लास्ट में उनकी निकालेंगे। तो फा के ऊपर जब दो पेश की तनवीन लगा तो फुन बना, तो क्या हुआ रीहुन आसिफुन। अब हम इसको एक मरतबा पढ़ लेते हैं, आदुन अज़ीमुन हरीसुन अलैकुम अजरुन कबीरुन रीहुन आसिफुन। तो दोस्तों और साथियों, कुरान मजीद की तिलावत के वक्त इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आएंगी। हमें और आपको दो पेश की तनवीन को पहचानना है। अब तक आपने दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन को पहचाना। आज आपने इस बात को जाना कि हम दो पेश की तनवीन को किस तरह से पहचानेंगे। किसी भी हर्फ के ऊपर चाहे दो जबर लगे, चाहे दो जेर लगे, चाहे दो पेश लगे, इनको हम तनवीन ही कहेंगे। दो जबर की तनवीन है तो अन की आवाज आएगी, दो जेर की तनवीन है तो इन की आवाज आएगी, दो पेश की तनवीन है तो उनकी आवाज आएगी। अब इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले असबाक में हम आपको बताएंगे कि जब किसी भी हर्फ के ऊपर तनवीन आ जाए और उस पर हमें वक्फ करना हो यानी रुकना हो तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं, ये बाद में हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अभी सरे दस्त हमें यह पहचानना है कि दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर की तनवीन अगर है तो अन की आवाज आएगी, दो जेर की तनवीन है तो इन की आवाज आएगी, दो पेश की तनवीन है तो उनकी आवाज आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों असबाब जो मैंने आपको 3 दिन में बताए हैं, पहले दो जबर की तनवीन, फिर दो जेर की तनवीन, फिर दो पेश की तनवीन, अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि उन वीडियोस को जरूर समाअत फरमाएं ताकि पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, सीखने और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।